तो क्या हाल चाल अनस्टॉपेबल्स, क्या आप लोग तैयार हो? यस सर। हाँ, व्हाट अबाउट अभिषेक एंड शिव? यस सर आंटी। अरे बहुत बढ़िया यार, तो फिर चलो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एंड देन वी आर गोना बी लर्निंग मेनी थिंग्स टुडे। सो विल दैट बी ओके? यस सर। तो सबसे पहले डे 7 तक हमने क्या क्या सीखा? अल्टीमेटली देखने को तो हमने बहुत कुछ देख लिया। सबसे पहले आज मैं बात करूँ वर्ब के बारे में। सो फार आई हैव बीन आस्किंग यू टू लर्न द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। सो अल्टीमेटली 39 की 39 वर्ब्स मैंने कहा था, एंड अगर आप याद करते आ रहे हो डे बाय डे तो अभी तक में आपसे याद हो गई होंगी। सो हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स करेक्टली इफ आई आस्क राइट नाउ? टेल मी, कौन कौन वर्ब की फॉर्म्स को बता सकते हो? टुडे आई लर्न ज- टुडे आई प्रैक्टिस द वर्ड। Okay, so are you sure that you are gonna be able to answer the forms of the verbs if I ask? यस Shiv? सर। Okay, Jay is sure. Yes, yes. Shiv is sure. What about Abhishek? Are you 100% sure? Yes, sir. Yes, sir. I am sure. Okay, that's really awesome. So let's give it a shot. Let's start asking and let's see whether you can answer the questions or not. Okay, so all the 39 verbs are going to be asked just right here, and you have to do your best to answer those questions. And there is a problem. I will make sure that you are unable to see the answers, otherwise it will be just of no use. When पहला क्वेश्चन आपके लिए वन बाय वन आपको आंसर देना है। फर्स्ट जय, सेकंड शिव, थर्ड अभिषेक। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. वन बाय वन यू गाइस हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जय के लिए, एंड दैट्स गोना बी राइज। राइज रोज राइजन। गिव अभिषेक, शिव Give, gave, given. ईट। ईट एट ईटन। Not like this, man. Follow the sequence that I've told you. First of all, Jay, then Shiv, then Abhishek. Don't answer, okay? So rise, rose, rise, and give, given, eat, ate, eaten. Then again, Jay, fall. Wall fell. Shiv, take. Take, took, taken. Abhishek, bid. Beat, bad, didn't, biting, bite. Bid, bid, bidden. Bid, bid, bidden. Biting, bites. Bidding, bits, I mean. Hide. Hide hid hidden. Then the next one, bend. Bend Bend, bend. bend. Jay, hold on. Okay, sit. Set, Sit, sitting, sits. Get. Get got got. Okay, that's really awesome. Next one, hold. hold, held. Jay- bound, biting, bound. What are you doing, guys? Okay, bleed. Blink black. Teach. Tease, taught. Cling. Clink, Cling, clang, clang, clinging, cling. Slide. Light lit little. Lightly. What? Shiv, light. Light, lit. Light, lit, lighting lights. Tell. Told. Tell, told, telling tales. Say. Say, Yes, sad. Okay, that's really awesome. Let's go ahead. Here. H-E-A-R. Here. Here ho. Here, heard. Okay, lose. Shiv. Lose Lost, lost. Listen, everybody. Follow your sequence. You guys are not following the sequence. Because of that thing, your voice doesn't get clear. Okay. I'm asking you to follow the sequence so that your voice is clear when you are speaking. I hope it is clear to you. अदरवाइज ये सभी लोग बोलते हुए तो सर किसी का भी समझ नहीं आता आपने बोला क्या है. सो ट्राई टू फॉलो द सीक्वेंस, स्पीक वन बाय वन. सो स्टार्टिंग विद जे राइट नाउ. मेक. Won't be 5 minutes. Papa's call comes to me. Alright, take your time. Go on. Make. Make, made, making. Okay, meet. Next. What is the problem? Hello, everybody. Follow the sequence and answer the question. What was that? Meet. Jay goes for you. Meet met meet. Meet, meeting, meets. Shiv, flee. Alright, maybe he's flee, fled. Flee, fled. Stand. Stand Stood. Shine. Abhishek. stone. Okay, win. Win won. You guys are not gonna follow the rules. Okay, never mind. आगे बढ़ते हैं. Beer. Beer born. Bear, bow, bone. Come. Bear, bow, bone होता है. And then come. Come, came, come. Do. Do did done. Do did done. Begin. Begin. Began. Blow. Exactly. Begin. Blow. Go went gone. अरे blow.
Go blue gone. Blow, blue, blonde. Go, Go blue gone. go, went, gone. See, Go blue gone. see. Go went gone. अरे see, See saw. see सा scene. Lie, See saw. See saw. okay, lie. See saw scene होगा ना सर? अरे यार सेम चीज क्यों रिपीट कर रहे हो? Lie ले. नेक्स्ट वन, सेकंड लास्ट. मो, Mode. मोड, मोन, मोइंग, मोज. एंड स्ले, Flame. दैट्स एक्चुअली स्ले, स्लू, स्लेन, स्ले, स्लीव, स्लेन, स्लेइंग, स्लेज. तो कुछ इस तरीके से आगे मूव करोगे. देयर इज वन थिंग दैट यू गाइस हैव बीन मिसिंग, दैट इज द बोलोगे तो साथ में बोल दोगे सर जी अब हम तो बोल ही रहे हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग नथिंग गेट्स क्लियर. इनमें पता नहीं चलता आप लोग क्या बोल रहे हो. बट ओके, नेवर माइंड. So just make sure again from tomorrow onwards I'll be asking verbs. So keep in mind that you have to follow a sequence so that whenever you speak I can hear everything properly. आगे बढ़ते हैं सर. एंड ये सारी वर्ब का खेल तो खत्म हुआ. अब आगे करना क्या है वर्ब में वो देखते हैं. सो यहाँ से स्टार्ट करना है. सबसे पहले आपने राइज को देखा था, तो अब राइज से रिलेटेड जितनी भी वर्ब्स हैं इन सारी की सारी वर्ब्स को याद करना है आपको. तो राइज रोज, राइजन, राइज रोज, राइजन, वेक वोक, वोकन, अवेक अवोक, वोकन, ब्रेक ब्रोक, ब्रोकन, स्पीक स्पोक, स्पोकन. तो सारी की सारी वर्ब्स जो एक सेमी पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, सेमी रिदम को फॉलो कर रही हैं. तो उसी रिदम को फॉलो करते हुए ताल से ताल बजाते जाना है, वर्ब की प्रैक्टिस करते जाना है. समझे? Yes sir. हाँ, ऐसे ही बी स्पीक, बी स्पोक, बी स्पोकन, चूज, चोज, चोजन, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, अनफ्रीजन, फ्रोजन, फ्रोजन. सो अल्टीमेटली अच्छे से ध्यान दोगे, सब एक ही धुन को, लय को, ताल को, रिदम को फॉलो कर रहे हैं. तो बस फॉलो करते करते इन सबकी प्रैक्टिस कर लेना. वीव वो वन, इंटरवीव इंटर वो वन, स्टील स्टोल स्टोलन, ट्रेड ट्रॉड ट्रॉडन, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन, स्माइट स्मोट स्मिटन, स्ट्राइव स्टॉप स्ट्रीवन. प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखना. दैट इज व्हाई आई एम जस्ट गोइंग थ्रू ऑल ऑफ देम सो दैट यू जस्ट प्रैक्टिस विद द राइट प्रोनाउंसिएशन. देन ड्राइव ड्रोव ड्रिवन. आगे बढ़ते हैं. ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, राइड रोड रिडन, ओवर राइड ओवर रोड ओवर रिडन, स्ट्राइड स्टोज स्ट्रीडन, राइट रोड रिटर्न, ओवर राइट ओवर रोड ओवर रिटर्न, री राइट री रोड री रिटर्न. इज दैट क्लियर? Yes. तो इन सारी वर्ब्स को आपको प्रैक्टिस करके आना. ज्यादा मैं नहीं दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट. जस्ट दीज आर द फ्यू वर्ब्स जिनकी आपको प्रैक्टिस करना हो गया. हाँ जी, Sir, या excuse me sir. हाँ, या टेल मी. Sir, override का correct pronunciation क्या होगा? Override ही होगा. ओवर राइट, ओवर रोड, ओवर रिटर्न, ओवर राइट. तो जो आर का साउंड होता है ना, आर का साउंड कम हो जाता है, तो आर बोलते नहीं. ओवर राइट, ओवर राइट, ओवर राइट, कुछ इस तरीके से. इज दैट क्लियर? Override. ओवर कुछ इस तरीके से आप बोलते हो. आप ये नहीं बोलोगे ओवर राइट, नो, ओवर राइट. तो अल्टीमेटली आर साइलेंट हो जाता है. Override. इज दैट क्लियर? Yes sir. सो दी जाता वर्ब्स ज्यादा मैं नहीं दूंगा. Yes, एक ही yes. धुन को मतलब राइज वाले सेक्शन को आपको याद करके आना है. इसके आगे हम कल देख लेंगे. सो इट्स गोना बी प्रीटी इजी पीजी. तो वर्ब की कहानी यहीं से होती है. दी एंड. आगे बढ़ते हैं सर आपके डे में, डे 7 में. और Question answer. क्वेश्चन एंड आंसर में फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना आस्क क्वेश्चंस एंड गाइस हैव टू आंसर देम. सो डे 7 आपने टू बी टू हैव देखा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखा, बट मेन चीज यहाँ पर बता रहा हूँ. विद विदाउट सारे प्रीपोजिशंस देखा. जस्ट मेक श्योर सारे के सारे प्रीपोजिशंस अच्छे से आते हैं. एंड आफ्टर दैट आपने सब्जेक्टिव केस देखा, पॉजिटिव केस देखा, ऑब्जेक्टिव केस देखा. दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू लर्न, दैट यू हैव लर्न सो फार. अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स यू हैव लर्न द यूज ऑफ नथिंग बट. यस और नो? Yes Yes, sir. You have learned the use of nothing but. You have learned the use of 2 plus verbs first form. You have learned the use of its no use. So सारी जितनी भी सबकी आपने वर्ब से याद किया है, फॉर्म से याद किया. अब आपने कुछ वर्ड्स भी याद किया. यस और नो? आई होप सो. जो मैंने वर्ड्स आपको याद करने के लिए दिया था, रेडी टू, फ्री टू, एक्साइटेड टू, अबाउट टू, बाउंड टू, बॉन्ड टू, इन सबको आपने याद करके आया. यस और नो जी? हाँ, चलो इसको भी बता देना, साथ साथ में मैं कवर कर लेता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री टू, रेडी टू का मीन्स तैयार होना. रेडी टू तैयार हो. दैट्स ग्रेट. फ्री टू Free होना. Free आजाद होना. फ्री होना या तो आजाद हो. दैट्स ग्रेट. नेक्स्ट वन इज एक्साइटेड टू, उत्सुक होना. उत्सुक होना. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला बॉन्ड टू. तय होना. अरे बॉन्ड टू जन्म होना, जन्म होना. देन बाउंड टू. अच्छा बाउंड, तय होना. ओके. देन सपोज्ड टू, सपोर्ट में उम्मीद होना. उम्मीद होना या तो चाहिए, मतलब होना या चाहिए. एग्जैक्टली. और मेरी उम्मीद के सेंस में होता है व्हेन यू आर सपोज टू डू समथिंग. जब आपसे कुछ करने की उम्मीद होती है, जब आप कुछ करने के रिस्पॉन्सिबल होते हो, एट दैट टाइम सपोज टू इज यूज्ड. आगे बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी, तुम्हें पढ़ना चाहिए. लाइक तुम्हें पढ़ना चाहिए मतलब तुमसे पढ़ने की उम्मीद है. समथिंग लाइक दैट. अबाउट टू, गोइंग टू को शॉर्ट फॉर्म गना यूज कर सकते हो. इसका मतलब क्या होगा? वाला. वाला. एबल टू,
एबल टू पाता है तो लेता, लेता हूँ। अनेबल टू नहीं नहीं पाता। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पर कैपेबल ऑफ का भी यूज कर सकते हो। कैपेबल ऑफ का मतलब होता है सक्षम होना, तो काबिल होना। इज दैट क्लियर? Yes, और sir. अल्टीमेटली इसका मतलब वही एबल टू वाला ही, या तो बोलूँ मैं इंग्लिश बोल पाता हूँ, या तो बोलूँ कि मैं इंग्लिश बोलने के सक्षम हूँ, मतलब तो दोनों का सेम ही है ना, मैं इंग्लिश बोलने के काबिल हूँ। Yes, So ultimately able to and capable of, both of them have the same meanings, but there are different ways to say the same thing. So that is why I have mentioned this thing over here. आगे बढ़ते हैं। राइट नाउ आपने सब्जेक्टिव केस देखा, ऑब्जेक्टिव केस देखा एंड पजेसिव केस देखा। पजेसिव केस में थोड़ा एडवांस में हम आज चलेंगे, लेकिन उसके पहले आई एम गोना आस्क क्वेश्चंस एंड यू गाइस हैव टू आंसर देम। इज दैट क्लियर? Yes, sir. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोना बी लाइक पंखा मेरे ऊपर है। The The fan fan is over to me. द फैन इज ओवर मी, या तो यहाँ पर अबव मी भी बोल सकते हो। अंतर क्लियर होना चाहिए, ओवर और अबव में क्या अंतर है, ठीक है जी। अगर एग्जैक्टली ऊपर है तो वहाँ पर ओवर करोगे, और कहीं पर भी ऊपर बस ऊपर है तो वहाँ पर अबव का यूज करोगे। द फैन इज ओवर मी। ऐसे बोलो कि मैं सूरज के नीचे हूँ, मैं सूरज के नीचे I हूँ। am under the fan. आई एम अंडर द I फैन। am below the fan. अच्छा, ओ सॉरी आई एम अंडर, अगर मैं पंखे के नीचे हूँ तो आई एम अंडर, या तो आई एम बिलो द फैन, दोनों में से किसी का यूज हो सकता है। डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, बिलो द फैन। और अगर मैं बोलूँ कि मैं सूरज के नीचे हूँ, मैं I am under the sun. आई एम बिलो द सन, आई एम बिलो द सन। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हमेशा एग्जैक्टली सूरज के नीचे रहोगे। कभी कभी अगर लगता है आपको कि एग्जैक्टली अगर सूरज के नीचे, तो वहाँ फिर 12 बजे पर होते हैं सर, 12 बजे। 12 बजे हो जाएगा, तो चलो ले लो भैया, आई एम अंडर द सन। सर 12 बजे करेक्ट सिर के ऊपर होता है सूर्य। हाँ, अगर दैट्स रियली ऑसम, तो फिर वहाँ पर कर दे रहा आई एम अंडर द सन। ओके, लेट्स गो। देखकर सर टाइम करेक्ट करते हैं हाँ, इसलिए। दैट्स रियली ऑसम। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। मैंने बोला यार देख भाई, ये कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ है, एक कुत्ता मेरे पीछे। अ डॉग The dog इज आफ्टर मी। आफ्टर का मतलब होता है पीछे पड़ना, तो अ डॉग इज आफ्टर मी, एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर आफ्टर का मतलब होता है किसी के पीछे पड़ना। जैसे मैं बोलूँ कि मैं अपने पापा के पीछे पड़ा हुआ था, after my father. आई वॉज आफ्टर माई फादर। दिस इज द वे यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। तो आई वॉज आफ्टर माई फादर, मैं अपने पापा के पीछे पड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। एंड वह लड़की उस लड़के के पीछे पड़ी हुई है। His girl. दैट गर्ल, Yes, sir. वह लड़की उस लड़के के पीछे पड़ी हुई है। कम ऑन, That girl is after that girl is after that boy. So ultimately this, that, these, those का भी यूज आपने देखा है। सुनो, Yes. ये मेरी पेन है, This is my pen. दिस इज माई पेन। वह तुम्हारा घर होगा, वह घर, वह तुम्हारा, He will have your house. वह तुम्हारा घर होगा, which means that will be. Is that clear? Yes, sir. Yes. That will be your house। अब यहाँ पर ही नहीं कर सकते आप, क्योंकि घर कोई लड़का नहीं है। Yes, That sir, will yes, be sir, your sorry. house। और अगर आपने यहाँ पर ये बोला कि he will be your house, तो भैया कोई लड़का तुम्हारा घर कैसे हो सकता है? Yes, sir, sorry, sir. ओके, तो दैट विल बी योर हाउस, वह तुम्हारा घर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। मैंने बोला वह है, उसके पास पैसा ही पैसा था यार। He has nothing but money. ही हैड, उसके पास पैसा ही पैसा था। ही हैड नथिंग बट मनी, उसके पास पैसा ही पैसा था, लेकिन अब उसके पास कर्ज ही कर्ज है। But he has. बट नाउ, लेकिन अब उसके पास कर्ज ही कर्ज है। ही हैज Nothing but नथिंग बट लोन। इज दैट क्लियर? loan. तो ही हैड नथिंग बट मनी, उसके पास पैसा ही पैसा था, बट नाउ, लेकिन अब ही हैज नथिंग बट लोन, उसके पास कर्ज ही कर्ज है, लोन ही लोन है। बट रिमेंबर वन थिंग, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चनों को आपको घर में अलग से प्रैक्टिस करना है। इज इट क्लियर? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको आपको शायद, या तो देयर आर हाई चांसेस कि आप मिस कर रहे होंगे, ट्रांसलेशन। डोंट टेक इट लाइटली। हाउ मेनी ऑफ यू ट्रांसलेटिंग? आप में से कौन कौन डेली ट्रांसलेट कर रहा है? लेट मी नो। Yes, sir. I practice. नो, प्रैक्टिस डजंट मैटर। ओके, प्रैक्टिस से आप जो भी रूल आपसे बनते हैं ना, उनमें हो गया। used to practice. Okay, translation is a must. Remember this thing. Without translation, you can't really be sure whether that rule is completely clear in your mind or not. लगेगा कि क्लियर है कि नहीं क्लियर है, माइंड ऊपर से लगेगा क्लियर है, बट जब तक ट्रांसलेट नहीं करोगे तब तक एग्जैक्टली क्लियर नहीं होगा कि हाँ मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ। डोंट टेक दिस पर्टिकुलर थिंग लाइटली, इट विल चेंज योर स्पोकन जर्नी कंप्लीटली। अगर आप इसको फॉलो करते हो, अगर डेली संडेज को ट्रांसलेट करते हो, किसी भी रूल में कंफ्यूजन नहीं आएगा। समझे?
Yes, sir. हाँ जी, तो भैया करो प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोना बी लाइक तुम मेरे सामने हो, तुम मेरे सामने हो, You are ahead of me. यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, और यहाँ पर ये भी बोल सकते हो यू आर बिफोर मी। अब यू आर का शॉर्ट फॉर्म भी बोल दो, आपने अपॉस्ट्रोफी का तो देखा ही है, तो यू आर बिफोर मी, इज दैट क्लियर? Ahead का भी मतलब आगे। अहेड ऑफ मतलब होता है आगे, सपोज आपसे आगे कोई है, चेहरा आपके सामने नहीं है, आपके आगे बस है, जैसे लाइन में, तो आप बोल दोगे यू आर अहेड ऑफ मी, इज दैट क्लियर? Okay. और यहीं पर अगर मैं बोलूँ कि तुम मेरे पीछे थे, तुम मेरे पीछे थे, You are behind. यू वर बिहाइंड मी, यू वर बिहाइंड मी, तुम मेरे पीछे थे। नेक्स्ट वन, एक कुत्ता मेरे राइट की ओर है, A dog is right to me. अ डॉग इज राइट टू मी, वह बीमार था, He was sick. ही वॉज सिक, वह भूखा होगा, He will be hungry. ही विल बी हंग्री, Hungry. उसके पास खाना होगा, He will have. ही विल हैव फूड, ही विल हैव फूड, उसके पास कुछ खाना होगा, He will have some. ही विल हैव सम Little फूड, food. हाँ कुछ 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 सम, तो उसके पास कुछ खाना होगा, ही विल हैव सम फूड, उसके पास खाने के लिए कुछ खाना होगा, He will have food. ही विल हैव सम फूड टू ईट, उसके पास खाने के लिए कुछ खाना होगा, इज दैट क्लियर? तो उसके पास खाने के लिए कुछ खाना होगा, ही विल हैव सम फूड टू ईट, उसके पास समय ही समय होगा बकवास करने के लिए, He will have nothing but time to talk. he will have nothing but time to talk nonsense, nothing but time to talk nonsense, nonsense। कुछ इस तरीके से आगे मूव करोगे, लेट्स गो अहेड एंड आस्क मोर क्वेश्चंस एंड इन दिस वे वी आर गोना बी गोइंग अहेड एंड प्रैक्टिसिंग ऑल दीस थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोना बी लाइक वे तुम्हारे दोस्त हैं, वे तुम्हारे दोस्त हैं, दे आर योर फ्रेंड्स बोलो, दे आर योर फ्रेंड्स, पहला तो तरीका ये, और यहाँ पर जाओ तो दोस्त का भी यूज कर सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो दोज आर योर फ्रेंड्स, यस और नो? So either you can say they are from your friends or you can say those are your friends. Both of them are right over here. And similarly if I say यह कार की चाबी है, क्या बोलोगे? This is car's key. यह कार की चाबी है, it is cars की, which means it's cars की, या तो आप यहाँ पर बोल सकते हो this is cars की, this is cars की। So ultimately both the options are going to be right here. Is that clear? Yes. Alright, pretty good. आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। मैंने बोला कार में मेरे नो फॉरगेट अबाउट दिस थिंग, मुझे सर्दी है, I I have. have cold. आई हैव अ कोल्ड, उसे सर्दी होगी, They will He will have cold. ही विल हैव अ कोल्ड, तुम्हें सर दर्द होगा, You will यू विल हैव अ हेडेक, तुम्हें सर दर्द होगा, यू विल हैव अ हेडेक, तुम्हें सर दर्द होगा, You will You will have nothing but यू विल हैव नथिंग बट हेडेक। अजीब सा सेंटेंस है बट ऐसे बोल सकते हो, ऑफ कोर्स वी कैन से लाइक दैट। ऐसे मैंने बोला कि यार मेरी बहन को ना बुखार है, My sister has a. माई सिस्टर हैज़ अ फीवर, इज दैट क्लियर? मेरी बहन को बुखार है, माई सिस्टर हैज़ अ फीवर। वह सोने के लिए, वह टीवी देखने के लिए एक्साइटेड था, He was ही वॉज watching. एक्साइटेड, You was ready. अरे वाह भाई। He was- सर आवाज ही नहीं आ रही। Alright, I hope my voice is clear right now. He was excited to watch TV. He was excited to watch TV. Am I audible properly? Can you guys hear me? Yes, sir. Okay, that's really awesome. So वह टीवी देखने के लिए excited था, he was excited to watch TV. Let's move to the next one, and that's gonna be like भैया, but with these things are pretty much easy peasy. So I'm not really, yeah, tell me. इससे वो डबल नहीं है। ये मेरे जूते हैं, translated. This is my It is shoe. my shoe. Not really. This is This my is my shoes मतलब यह मेरा जूता है. This is my shoe. अब shoes नहीं बोलोगे, shoe बस बोलो, क्योंकि एक जूते की बात कर रहे हैं। तो अगर यह मेरा जूता है तो आप बोलोगे this is my shoe. लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये मेरे जूते हैं, These are my तो shoes. वहाँ पर this का नहीं, these का यूज होगा, these are my shoes. Is that clear? And similarly if I say वे मेरे जूते हैं, वे मेरे जूते हैं, Those are my shoes. those are my shoes. तो वे मेरे जूते हैं, those are my shoes, कुछ इस तरीके से। ऐसे ही राम मेरा दोस्त है, Ram is my. friend. राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स गोना बी लाइक राम के पास खेलने के लिए एक बैट है. Ram to राम play. हैज राम हैज अ बैट. राम के पास एक बैट है खेलने के लिए. टू प्ले. टू प्ले. तो राम हैज अ बैट टू प्ले. राम के पास खेलने के लिए एक बैट है. राम के पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए एक बैट है. राम हैज बैट टू प्ले यू. to play you. टू प्ले विद यू. तो राम हैज अ बैट. राम के पास एक बैट है टू प्ले विद यू, तुम्हारे साथ खेलने के लिए. इज दैट क्लियर? सर Sir. इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. यस सर. सर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो. या टेल मी. Abhishek has left the meeting. All right, he might have been facing some network issues. Okay, then let's answer some of the questions. Next question for you, and that's gonna be like, ये तैयार है. यह तैयार है. Can you translate this sentence? He is ready. सर It is ready. Yeah, tell me. सर ये बार बार कट जा रहा है वीडियो और शिव का ज्वाइन ही नहीं हो रहा. शिव का ज्वाइन ही नहीं हो रहा. Okay, Shiv is here by the way. सर आप कौन? What was the problem you were facing earlier? सर मेरे में कुछ दिख कट करके वापस ऐड हो रहा है. Okay, is everything मेरा clear? ऑटोमेटिक. Is everything clear right now? यस सर. यस सर. Okay, that's all right. If you face any problem, you can let me know, and then we'll be trying to resolve that. तो मैंने बोला यह तैयार है. It is ready. यह है खाने के लिए तैयार है. इट इज रेडी रेडी टू ईट. It is ready to eat. यह बेचने के लिए तैयार है. इट इज रेडी रेडी टू टू. It's ready to sell. It's ready to sell. Similarly, हम इंग्लिश सीखने के लिए एक्साइटेड होंगे. We will We will be excited. हम excited होंगे. So we will be excited to learn English. हम इंग्लिश सीखने के लिए excited होंगे. And similarly, आप बोल सकते हो कि like वह वहाँ होगा. He will be there. He देयर. he will be there या तो he will be over there. दोनों का चीज कर सकते हो. तो he will be there या तो he will be over there. And last but not the least, राम यहाँ है. राम इज हियर. राम इज हियर या तो राम इज ओवर है. सो अल्टीमेटली क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाले हैं क्योंकि अभी तक आप कुछ खास आपने देखा नहीं. टू बी टू हैव देखा, नथिंग बट ये सबको देखा, प्रीपोजिशंस देखा, कुछ क्वांटिफायर्स को देखा और उनकी हेल्प से आपने सेंटेंस अभी तक बनाते आ रहे हो. ठीक है जी. सो जस्ट प्रैक्टिस ऑल दीस थिंग्स. अब जल्द ही मैं आपको कुछ नए रूल्स देने वाला हूँ जिनकी हेल्प से आप बहुत डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस बना सकते हो. अंटिल देन थोड़ा सा वेट करना जब तक मैं रूल्स को दे नहीं देता. आगे मूव करते हैं, कुछ नया सीखते हैं. एंड अल्टीमेटली चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है. तो लेट्स फोकस ओवर हियर. तो आपने सब्जेक्टिव केस देखा, आपने ऑब्जेक्टिव केस देखा, आपने पॉजिटिव केस देखा, मतलब अधिकार बताना देखा कि कोई भी वर्ड अपना अधिकार कैसे बताएगा. इज दैट क्लियर? यस सर. सर. ओके. अब पॉजिटिव केस में भी दो केसेस होते हैं. पहला एक जो वीक वाला होता है, दूसरा स्ट्रॉन्ग वाला होता है. सिंपल है. अब स्ट्रॉन्ग का यूज क्या होता है तो हम आगे चल के बताएंगे. और देखो स्ट्रॉन्ग बनता कैसे है. तो माई का स्ट्रॉन्ग रूप होता है माइन. क्या होता है? माइन. माई का स्ट्रॉन्ग रूप मतलब स्ट्रॉन्ग वर्जन होता है माइन. अब बाकी में कुछ नहीं करना. अगर किसी के लास्ट में यस लगा तो बढ़िया, वो पहले से स्ट्रॉन्ग है. नहीं लगा है तो यस लगा देना. यस फॉर स्ट्रॉन्ग. क्या होता है? यस फॉर स्ट्रॉन्ग. तो अगर यस लगा है किसी भी वर्ड में, जैसे हिज में, इट्स में, अव्वल्स में, तो वो पहले से स्ट्रॉन्ग है. और अगर यस नहीं लगा है तो यस लगा दो. यस फॉर स्ट्रॉन्ग. इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात. तो माई का माइन हो गया ये एक्सेप्शन. इसको आपको अपने माइंड में रखना है. इसके अलावा जिनमें भी यस लगा कोई टेंशन नहीं. हिज का हिज ही रहने दो, इट्स का इट्स ही रहने दो, अव्वल्स का अव्वल्स ही रहने दो, सूनी म्यूज को वही रहने दो सेम. और अगर यस नहीं लगा जैसे हर में तो उसमें यस लगा दो. तो हर्ष हो गया, व्हाट इज दैट, योर का योर्स हो गया, और का ऑर्स हो गया, एंड देयर का देयर्स हो गया. अभिषेक प्लीज टर्न द माइक ऑफ प्लीज. ओके थैंक यू वेरी मच. आगे बढ़ते हैं. तो आई होप इट इज क्लियर. अगर कोई कंफ्यूजन तो आप पूछ लेना. एंड इफ देयर्स बैकग्राउंड नॉइज सो प्लीज मेक श्योर दैट्स नॉट कमिंग. तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, सिंपल स्ट्रॉन्ग वर्जन बना देना. तो आपने सिंपल माई हिज हर देखा था, तो मैंने कहा इनका स्ट्रॉन्ग रूप बना दो. स्ट्रॉन्ग रूप बनाने का रूल क्या है? सिंपल सी बात है, माई का माइन कर दो, कोई टेंशन ही नहीं. इसके अलावा लास्ट में यस लगा तो बढ़िया, अदरवाइज यस लगा दो. तो हर का हर्ष कर दिया, योर का योर्स, और का ऑर्स, देयर का देयर्स. और इस तरीके से आप आगे मूव करोगे. एनी कंफ्यूजन? No, sir. नो सर. ओके. नो सर. बात आती है इनका यूज कहाँ होगा. सिंपल सी बात है भैया, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो अकेले आएगा और जो वीक होगा किसी को साथ लेकर आएगा. तो माई के बगल में कुछ आएगा, आप माई बैग बोलोगे, हिज बैग बोलोगे, हर बैग बोलोगे, इट्स बैग बोलोगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग वाले अकेले आएंगे. ठीक है ना? इज दैट क्लियर? Yes.
तो अगर क्लास में आपकी पेन गुम गई और आपकी मैम को आपकी पेन मिली और आपकी मैम पूछते कि हुज पेन इज दिस, या किसकी पेन है, तो आप तो ये तो पहली बात आप ये बोल सकते हो कि मेरी पेन है, तो आप बोल सकते हो मेरी पेन। तो जब आप बोलोगे मेरी पेन तो वहां पर बोलोगे माई पेन। लेकिन जहां पर आप सिर्फ बोलो मेरी, तो ये भी इसमें भी तो आपकी मैम समझ जाएंगी ना कि आपकी है। तो अगर आपने बोला मेरी तो वहां पर आप बोलोगे माइन। तो जहां पर अकेला आ जाए पजेसिव वर्ड वहां पर स्ट्रॉन्ग वाला लगा दोगे, जहां पर किसी के साथ है तो वहां पर माई हिज हर लगा दोगे। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो ये वीक हो गए, पहली वाली जो कॉलम है वो वीक हो गई, सेकंड वाली कॉलम स्ट्रॉन्ग हो गई। तो अब आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग हमेशा अकेले आएगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, वीक हमेशा किसी ना किसी के साथ आएगा क्योंकि वो वीक है। सिंपल सी बात है। चलो जी, लेट्स गो हेड आगे। या एग्जांपल जैसे दिस इज माय पेन एंड शी इज माइन। शी इज बढ़िया, शी इज माइन, हाँ चलेगा। तो मैंने एग्जांपल क्या दिया था कि सपोज अगर ऑफ कोर्स उसको भी लेंगे सर जी, शी इज माइन, ऑफ कोर्स वो आपकी ही रहेगी। तो अगर पहला एग्जांपल अगर आपकी पेन गुम गई तो आपकी मैम ने पूछा हुज पेन इज दिस, तो आपने बोला मेरी पेन, तो मेरी पेन को आप बोलोगे माई पेन, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपने बोला सिर्फ मेरी तो वहाँ पर बोलोगे माइन, ठीक है ना। ऐसे अगर आपको बोलना है उसकी पेन तो आप बोलोगे हिज पेन। लेकिन अगर आपको बोलना है सिर्फ उसकी तो वहाँ पर क्या बोलोगे, सिर्फ और सिर्फ हिज बोलोगे, ठीक है जी। अगर किसी लड़की की हो गई तो अगर आपको बोलना कि उसकी पेन तो आप बोल दोगे हर पेन। लेकिन अगर आपको सिर्फ बोलना कि उसकी तो वहां पर आप क्या बोलोगे, हर बोलोगे कि हर्ष बोलोगे? हर्ष बोलोगे। सिमिलरली तुम्हारी पेन तो आप बोल दोगे योर पेन। लेकिन अगर बोलना कि तुम्हारी तो वहां पर बोल दोगे योर्स। अब चलते हैं आपके रियल एग्जांपल्स में। तो मैं बोला कि वह है मैं उसका हूं और वह मेरी है। मैं उसका हूं, आई एम हर्ष, आई एम हर्ष एंड शी इज माइन। इज दैट क्लियर? तो आई एम हर्ष एंड शी इज माइन, मैं उसका हूं और वह मेरी है। मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। यू आर माइन। आई एम योर्स, मैं तुम्हारा हूं, आई एम योर्स एंड यू आर माइन। आई एम योर्स एंड यू आर माइन, कुछ इस तरीके से। यह मेरा जूता है, दिस इज माई शूज, दिस इज माई शू, यह मेरा जूता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यह जूता, सुनना, यह जूता मेरा है, तो इसको क्या बोलोगे? दिस शू इज माइन। अब यहाँ पर मैं हिंदी में लिख देता हूँ बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। उसमें तो शूज में एस लगाए हैं, इसमें शू बस लिखे हैं। कहाँ लगाया है सर? वर्ब कह रहा हूँ, मैंने किसी सेंटेंस में देखा था। हाँ देखो, एक जूते की बात करोगे तो वहाँ पर शू लगाओगे, और एक से ज़्यादा जूते की बात करोगे तो वहाँ पर शूज लगाओगे। और मेरे यहाँ पर मैंने दिस लगा दिया, मतलब एक की बात कर रहा हूँ, दिस लगाता हूँ तो एक से ज़्यादा की बात करूँ। इज दैट क्लियर? नहीं, तो शूज तो जोड़े में होंगे ना। एक भी तो हो सकता है। किसी ने मुझे एक जूता लगाया, मुझे नहीं यार, सपोज किसी के सर पे आकर एक जूता लगा, अब उसको गुस्सा चढ़ी और कहते किसका जूता है बता, तो वहां पर बोलोगे भैया जी ये मेरा जूता है, बोल सकते हो? यस सर। हाँ, पॉसिबिलिटी है भैया। चलो बढ़िया। अगर एक जूते की बात करोगे तो वहाँ पर शू बोलोगे, एक से ज़्यादा की बात करोगे तो शूज़ बोलोगे, सिंपल सी बात है। बट मोस्टली वो पेयर में होते हैं इसलिए हम शूज़ बोलते हैं। बट सपोज आपका जूता एक जूता चोरी हो गया, अब किसी ने वो जूता पाया और कहता कि भैया ये किसका जूता है, शिव का है क्या, प्रॉपर तो शू ही बोलोगे ना। चलो यहाँ पर हिंदी सेंटेंस देता हूँ, इसको अच्छे से ध्यान देना। पहला सेंटेंस है यह है तुम्हारी पेन है, यह है तुम्हारी, सब्जेक्ट बताना है आपको, तुम्हारी पेन है। तो अल्टीमेटली वह चीज सब्जेक्ट ओवर हियर, यह तुम्हारी पेन है, सब्जेक्ट क्या? योर पेन। अरे हाँ वो तो ठीक है भैया, लेकिन इसको सब्जेक्ट क्या बताइए जल्दी से। यहाँ पर सब्जेक्ट यह तुम्हारी पेन में सब्जेक्ट यह है, इज दैट क्लियर? सब्जेक्ट यह है और इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इट, लास्ट में ये तो दिस का भी यूज कर सकते हो, लास्ट में क्या है तो इट इज योर पेन, इज दैट क्लियर? इधर अगर हम मूव करें तो यह पेन तुम्हारी है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट यह पेन है, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर बोलोगे दिस पेन इज, और फिर यहाँ पर तुम्हारी अकेले आ गया इसलिए यहाँ पर लगा दोगे योर्स। एनी कंफ्यूजन? इज दैट क्लियर टू यू? हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ते रहोगे। तो मैंने बोला अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि यह लैपटॉप मेरा है, सॉरी यह लैपटॉप उसका, किसी लड़की का, यह उसका लैपटॉप है, बनाओ ये उसका लैपटॉप है, दिस इज हर लैपटॉप, दिस इज हर लैपटॉप, यह उसका लैपटॉप है। और यह लैपटॉप, सुनना अच्छे से, यह लैपटॉप उसका है, दिस लैपटॉप इज हर्स। सिमिलरली ये जूते, ये मेरे भाई के जूते हैं,
ये मेरे भाई के जूते हैं। ये मेरे क्या बोले सर? ये मेरे भाई के जूते हैं, एक से ज्यादा है, ये मेरे भाई के जूते हैं। ये मतलब these are my brother's shoes, is that clear? My brother's shoes. These are my brother's shoes, ये मेरे भाई के जूते हैं। Is that clear to you? Yes, Yes, sir. sir. Okay, और अगर मैं बोलूँ कि ये जूते मेरे भाई के हैं, ये जूते मेरे भाई के हैं, These shoes These These are my shoes brother. are brother. these shoes are my brothers, मेरे भाई के। Is that clear to you? My brother. These shoes are my brothers, ये जूते मेरे भाई के हैं, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये राम का है, ये राम का है। Yes, Ram. दिस इज राम्स, दिस इज राम्स। और अगर आप चाहो तो पोजीशन की जगह यहाँ पर ये भी बोल सकते हो दिस इज ऑफ राम, ये सुनो। Yes, sir. तो जब आप पोजीशन बताते हो तो वहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी का भी यूज कर सकते हो। अल्टीमेटली मैंने क्या बोला, सुनना अच्छे से। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पोजीशन, सो वहाँ पर आप किसका किसका यूज कर सकते हो वो देखते हैं। तो वहाँ पर आप माई का यूज कर सकते हो, सिंपल सी बात है, माई का यूज कर सकते हो, वहाँ पर हिज का यूज कर सकते हो, वहाँ पर हर का यूज कर सकते हो, वहाँ पर किसी भी नेम के लिए अपॉस्ट्रॉफी यस का यूज कर सकते हो, वहाँ पर योर का यूज कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। और वहाँ पर आप ऑफ का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ऑफ भी अधिकार बताने के, सॉरी पोजीशन बताने के काम आता है, या सुनो। तो अगर मैं बोलूँ राम की पेन, एग्जाम्पल वही जो कल मैंने दिया था, राम की पेन, तो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको क्या क्या बोल सकते हो, पहला सिंपल सा तरीका आप बोल दो राम्स पेन, या सुनो, आपने बोल दिया राम्स पेन, राम की पेन। एंड सेकंड तरीका यहाँ पर ये भी बोल सकते हो पेन ऑफ राम, इजी, Yes. ऑलराइट। ऐसे ही मैंने बोला माई पेन, माई पेन मतलब हो गई मेरी पेन। क्या यहाँ पर ऑफ लगाकर बोल सकते हो? क्या यहाँ, जस्ट अ मिनट, ऑलराइट, क्या यहाँ पर ऑफ लगाकर बोल सकते हो? क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ पेन ऑफ माइन? व्हाट डू यू से? कैन आई से पेन ऑफ माइन, मेरी पेन? व्हाट डू यू से अजय, व्हाट डू यू से अजय? क्या कहते भैया? Yes, sir. ओके कह सकते। सो इट कुड बी सेड लाइक दैट, ओके। मैं बोलूँ यह मेरी, यह पेन मेरी पेन है, तो आप बोल सकते हो दिस इज माई पेन, तो दिस इज द पेन ऑफ माइन। वैसे इस तरीके से बहुत कम लोग बोलते हैं, बट इन द रेयरेस्ट केस यू कैन जस्ट से लाइक दिस टू, ओके। बट मेनली माई पेन ही ज़्यादा यूज होता है, बट दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन, ओके, जहाँ पर आप इसे फिगर आउट कर सकते हो। दिस इज अ पेन ऑफ माइन मतलब मेरी पेनों में से एक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर ऑफ का मतलब में से होता है, तो अगेन बट अल्टीमेटली यहाँ पर ये पोजीशन ही बता रहा है, ठीक है ना। दिस इज अ पेन ऑफ माइन मतलब मेरी पेनों में से एक है, मेरी पेन है, समथिंग लाइक दिस। तो अल्टीमेटली थोड़ा थोड़ा मीनिंग वही देता है, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, बट ध्यान रखना ऑफ भी पोजीशन बताने के लिए यूज होता है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर ऑफ पोजीशन कैसे बताता है और अपॉस्ट्रोफी पोजीशन कैसे बताता है? No, sir. ओके दैट्स गुड। कोई कंफ्यूजन तो आप बता देना, अदरवाइज आगे मूव करते हैं। हमने अल्टीमेटली क्या देखा? हमने देखा पॉजिटिव केस के दो रूप, पहला हो गया डायरेक्टली माई हिज हर, और दूसरा हमने स्ट्रॉन्ग वर्जन देखा माइन हिज हर्स इट्स, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखो इट्स, यहाँ पर ये रॉन्ग होता है, ठीक है ना। आप ये नहीं बोल सकते, अगर बोलना कि यह इसकी पेन है तो आप बोलो इट्स पेन, आप इट्स नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो बस इसको देखो, सर अभी तक आवाज नहीं आ रही। ओह इज दैट सो, अब आ रही है सर जी? Yes, sir. Okay, so maybe you guys are facing the problems because Jay doesn't have these kinds of problems in his side. So maybe No, sir. आपको प्रॉब्लम आ रही है जय? No, sir. Okay, so I hope from इसका my मतलब मैं तो वन किसी। okay it could be that. Yes. तो Because आगे it's VI sim. हाँ It's VI sim and this sim is very bad. oh yeah I get that. ओके सो अल्टीमेटली आपने दो पॉजिटिव केस के फॉर्म देखा, स्ट्रॉन्ग वर्जन एंड वीक वर्जन। स्ट्रॉन्ग वर्जन में इट्स का यूज ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है, ठीक है ना। इट्स का जैसे स्ट्रॉन्ग वर्जन वाला इट का यूज वहाँ पर, इट्स का यूज वहाँ पर अकेले नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अब स्पोकन में सब कुछ चलेगा, स्पोकन में तो यूज करते हो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट ग्रामेटिकली जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू लर्न। एंड आफ्टर दैट आपने ये भी देखा कि अपॉस्ट्रॉफी का भी यूज कर सकते हो अधिकार बताने के लिए, और माई हिज हर इनका भी यूज कर सकते हो, और आपका भी यूज कर सकते हो अधिकार बताने के लिए। दिस इज द थिंग दैट यू हैव लर्न। आगे मूव कर दे। अब हम बात करते हैं, ये बताओ भैया इट का भी मतलब यह होता है, दिस का भी मतलब यह होता है, अंतर क्या है? ही शी का मतलब भी वह होता है, दैट का भी मतलब वह होता है, अंतर क्या है? दे का भी मतलब ये होता है, दोस्त का भी मतलब ये होता है, अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस अमंग ऑल दीज वंस? सर ही और सी किसी भी सजीव वस्तु के लिए लगाते हैं, वो निर्जीव वस्तु के लिए लगाते हैं। ओके सो पहला क्वेश्चन आपके लिए, Living in इट non-living वर्सेस दिस, दोनों को मतलब हो गया यह। सेकंड क्वेश्चन
ही, शी इट तब लगता है सर वर्सेस दैट, वाई, दे, देखिए इट और दिस दोनों नॉन लिविंग थिंग में लगता है, लेकिन दिस का यूज करते हैं जब हम किसी चीज को जानते हैं, ओ उसके बारे में अगर हमको कंफर्म पता है। ऑलराइट। अगर पहले से ज़्यादा अगर आप डेप्थ में जाओगे तो बहुत सारी अंतर पता चल जाएगी। मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी और आप बिना कंफ्यूजन के इनका स्पोकन में यूज कर पाओगे। इज दैट क्लियर? यस सर। देयर कुड बी मैनी डिफरेंसेस बिटवीन बोथ दिस अमंग दिस वर्ड्स, बट मैं वो मेन डिफरेंस बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए? यस ओके, अंतर मैं बताता हूँ, ध्यान देना। इट को अच्छे से देखो, इट को देखा आपने, ही शी को देखा आपने, दे को देखा आपने, ये मेन सब्जेक्ट की कैटेगरी से आई है। सुनो, यस मेन सब्जेक्ट Yes, मतलब sir. आई, ही, शी, इट, अव्वल, यू, विदेश, सोनू, इन, मनु, ये हमारे मेन सब्जेक्ट थे और ये मेन सब्जेक्ट की कैटेगरी से आई है। सुनो, जो हमने सब्जेक्ट sir. देखा था उधर से सारे के सारे आए। बाय द वे दिस दैट दिस दो तो उस कैटेगरी, दिस दैट दिस दो की कैटेगरी से आया। अब अच्छे सुनना कि मेन सब्जेक्ट के बगल में यूजुअली, हमेशा नहीं बट मोस्ट ऑफ द केसेस, हम कोई शब्द नहीं रखते हैं। हम इट बुक नहीं बोलेंगे, हम ही बॉय नहीं बोलेंगे, हम शी गर्ल नहीं बोलेंगे, हम दे बॉय नहीं बोलेंगे। इज दैट क्लियर? Yes. अल्टीमेटली जो मेन सब्जेक्ट है उनके बगल में हम नाम नहीं रखेंगे। इनके बगल में अगर नाम जोड़ दोगे तो वो गलत हो जाएगा। और ये दिस दैट दिस दोस्त के बगल में हम नाम रख सकते हैं। आप दिस बुक बोल सकते हो लेकिन इट बुक नहीं बोल सकते, दैट बुक बोल सकते हो लेकिन ही बुक शी बुक नहीं बोल सकते, दोज बुक्स बोल सकते हो लेकिन दो बुक दे बुक नहीं बोल सकते। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द मेनली Yes, sir. दिस इज द मेन डिफरेंस और यही आपको मैटर करता है। ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सिंपल सी भैया इट, ही, शी, दे ये मेन सब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट के बगल में नाम नहीं लगा सकते, लेकिन दिस दैट दोस्त के बगल में नाम लगा सकते हो। सिंपल सी बात है। इजी? यस चलो बहुत बढ़िया। कोई कंफ्यूजन यहाँ सर। पर? अब ये बोलता है कि मेरा मन नहीं है, मैं क्यों ना लगाऊं? हाँ, तो बोल रहा है कि not मैं क्यों understand. लगाऊं? मैं ना लगाऊं? कह रहा है मैं क्यों लगाऊं, उसमें मेरा मन क्यों लगाऊंगा? तो आप मेन सब्जेक्ट में लगाओगे? अब लगाओ लगाओ। नहीं बोला। not understand. व्हाट डू यू से? योर वॉइस इजंट क्वाइट क्लियर। Sir, please repeat. सर ही लाइक कि दिस में ही क्यों लगाया जाता है, उसमें क्यों लगा सकते हैं? ही, शी में ही क्यों सब्जेक्ट मतलब वर्ड नहीं लगाया जाता, दैट में क्यों लगाया जाता है? हाँ सिंपल लुक, कुछ ऐसा समझो कि हम ही बॉय तो नहीं बोल सकते ना कि वह लड़के के लिए ही बॉय, अजीब सा है। शी गर्ल तो नहीं बोल सकते ना। ये मेनली मेन सब्जेक्ट है आपके, ठीक है ना। मेन सब्जेक्ट के बगल में नाम नहीं आ सकता है, और अगर नाम को लाने इसलिए फिर वहाँ पर हमने दैट को लाया ताकि दैट के बगल में हम नाम ला सकें। दैट बॉय आप बोल सकते हो। यस सर। जैसे कि वो जो मतलब मेन होता है उनके सीट में बैठ सकता है, और जो छोटे मोटे होते हैं उनके सीट में कोई बैठ लाइक दिस। ओके, सो जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड एंड दिस इज इट। यही डिफरेंस है मेरे दोनों में। सेंटेंस कुछ बनाते ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला कि सिंपल सी पहला क्वेश्चन है कि यह मेरी बुक है। अगर मैं बोलूँ यह मेरी बुक है तो आप सिंपल बोल दोगे दिस इज माई बुक। यस और नो? यस दिस इज माई बुक, यह मेरी बुक है। और आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो इट इज माई बुक। सो अल्टीमेटली यहाँ पर दोनों यूज हो सकते हैं। यस और नो? यस तो दिस इज माई बुक या तो इट इज माई बुक। लेकिन अगर मुझे बोलना कि यह बुक मेरी है तो वहां पर क्या बोलोगे? दिस This book is mine. दिस बुक इज माइन, इट बुक इज माइन, कौन सा सही है? विच वन इज राइट? दिस बुक इज माइन कि इट बुक इज माइन? दोनों sir. अच्छा, बहुत बढ़िया। Fine, सही है. इट के बगल में नाम नहीं आएगा, सो अल्टीमेटली सेकंड वन इज रॉन्ग। इज दैट क्लियर? सो यू वुड से दिस बुक इज माइन। First one is right है. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। वह लड़का तैयार है। ही बॉय इज रेडी या तो दैट बॉय इज रेडी? बॉय दैट बॉय। That boy is Which one is right? That boy is ready. Is that clear to you? Similarly, there is gonna be one more example for you. मैंने बोला कि भैया देखो, वे घर हमारे हैं, वे घर हमारे हैं। They house, those houses. they houses are ours कि those houses are ours? Those houses. Those houses All are ours. houses. सिंपल यहाँ पर दे के बगल में नाम नहीं लगाओगे। सो यूजुअली इनके बगल में हम नाम नहीं लगाते हैं। सो जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड। कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे जहाँ पर इनके बगल में भी नाम आपको मिल जाए। मैं बोलूँ कि वे लोग तो आप बोलोगे दोज पीपल है तो दे पीपल, ऐसे कहीं कहीं पर बोल देते हैं, बट 99% केसेज में आपको ज़्यादा नाम नहीं मिलेंगे। इज दैट क्लियर?
यस सर। तो दिस इज द वे, इस तरीके से आप आगे मूव करते रहोगे. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन लेट मी नो, अदरवाइज हम आगे मूव करने वाले हैं. तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपने इसको देखा, सारा का सारा यूज. बस ऐसी कैसी कहानी यहीं से खत्म होती है. आपने अंतर भी देख लिया, इट वर्सेस दिस, ही शी वर्सेस दैट एंड दे वर्सेस दोस. लेट्स गो अहेड, आगे मूव करते हैं. बात करते हैं स्पेशल यूज ऑफ इट की. ठीक है ना, इट का स्पेशल यूज क्या होता है. इट का मतलब अभी तक आपने यह देखा है, लेकिन इसके अलावा भी क्या इट का कोई स्पेशल यूज होता है. वहां पर इट का यूज होता है टाइम के लिए. किसके लिए होता है? इट क्या यूज मेनली यहाँ पर होता है टाइम के लिए. अब टाइम का मतलब क्या है ये हम देखते हैं. टाइम को हम घड़ी से देखते हैं. तो एग्जैक्टली टाइम की शुरुआत होती है क्लॉक टाइम से. क्लॉक टाइम मतलब होता है घड़ी वाला समय. वी आर गेटिंग बैकग्राउंड नॉइज फ्रॉम अभिषेक साइड, प्लीज टर्न द माइक ऑफ फॉर नाउ. ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. ओके, सो मैंने बोला टाइम की शुरुआत होती है क्लॉक टाइम से. मतलब समय को देखना तो आप सिंपली घड़ी पे ही देखते हो. तो क्लॉक टाइम से शुरुआत हो गई. फिर क्लॉक टाइम क्या बनाएंगे? डेज एंड डेट्स बनाएंगे. देन डेज और डेट्स मिलकर क्या बनाते हैं? वीक्स बनाते हैं. देन वीक्स मिलकर मंथ्स बनाएंगे. मंथ्स मिलकर सीजन, सीजन मिलकर ईयर बना देंगे. ईयर मिलकर डिकेट्स 10 साल बना देंगे. डिकेट्स मिलकर सेंचुरी 100 साल बना देंगे. एंड सेंचुरीज मिलकर लॉन्ग पीरियड बना देंगे. सो अल्टीमेटली इस तरीके से पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है. कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? तो सिंपल जो टाइम की शुरुआत होती है घड़ी के समय से शुरुआत होती है. तो क्लॉक टाइम हो गया. क्लॉक टाइम मतलब घंटे हो गए, मिनट हो गए, सेकंड हो गए. ये सारा का सारा क्लॉक टाइम हो गया. क्लॉक टाइम मिलकर क्या बनाएंगे? क्लॉक टाइम मिलकर क्या, अरे हंस लो भैया. क्लॉक टाइम मिलकर क्या बनाएंगे? डे डेज. डे डेट्स मिलकर क्या बनाएंगे? वीक्स. दिन मिलकर सप्ताह बनाते हैं. वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ते चलना है. तो क्लॉक टाइम मिलकर डे डेट्स बना दिए. डे डेट्स मिलकर आपके वीक्स बनाएंगे. वीक मिलकर क्या बनाएगा? मंथ. मंथ मिलकर क्या बनाएंगे? सीजन. मंथ मिलकर पहले सीजन बनाएंगे. सीजन मिलकर ईयर बनाएंगे. ईयर मिलकर डिकेड बनेगा. डिकेड मिलकर सेंचुरी बनेगा. सेंचुरी मिलकर बहुत लंबा समय, लॉन्ग पीरियड हो जाएगा. इज दैट क्लियर? तो ये सारा का सारा हो गया टाइम. तो टाइम की शुरुआत ही ऐसे होती है. इसके अलावा यहाँ पर टाइम मतलब डे भी टाइम ही है, नाइट भी टाइम ही है. लाइट डार्क, अगर लाइट है मतलब दिन की बात हो रही, काइंड ऑफ समझ सकते हो. डार्क मतलब समय से रिलेटेड है. हॉट मतलब समझ सकते हो गर्मी है. ठीक है ना. कोल्ड समझ सकते हो ठंडी से रिलेटेड है. सो अल्टीमेटली ये वर्ड्स भी टाइम से रिलेटेड है. इज दैट क्लियर? तो डे, नाइट, लाइट, डार्क, हॉट, कोल्ड. ऐसे अगर आपको बोल रहे हैं कि सुबह, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, ये सारा का सारे वर्ड्स टाइम से रिलेटेड है. यस और नो? वुड यू एग्री विद मी? ओके, दैट्स वेरी ऑसम. तो जब भी आप टाइम की बात करते हो, यहाँ पर तो आपने देख लिया टाइम का मतलब होता क्या है. अब जब आपने टाइम के बारे में देख लिया, तो व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, जब भी आप समय की बात करोगे, जब भी आप टाइम की बात करोगे, टाइम मतलब यहाँ पर जितने भी वर्ड्स लिखे उन सब का मतलब होता है टाइम. सो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट टाइम, एट दैट टाइम इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट बट इट हैज नो मीनिंग. अगेन रिपीटिंग, जब आप टाइम की बात करोगे वहां पर इट एक सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, लेकिन उसका मतलब कुछ भी नहीं होगा. सिर्फ यूज होगा एज अ डमी सब्जेक्ट. इज दैट क्लियर? यस सर. कुछ इस तरीके से. बाय द वे यहाँ पर टुडे हो गया आज, कल हो गया बीता हुआ यस्टरडे, और परसों हो गया द डे बिफोर यस्टरडे जो बीत गया है. ऐसे ही टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, ये तो मैंने पिछली क्लास में बता दिया. सो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड. एनी कंफ्यूजन सो फार? नो सर. हाँ जी, कोई कंफ्यूजन? जय शिव. शिव अभिषेक. नो सर, नो सर. ओके, तो मैंने क्या बोला, सिंपल सी चीज आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप टाइम की बात करोगे, टाइम मतलब जो भी आपने यहाँ पर सारा का सारा देख लिया. सो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट टाइम, टाइम की बात करते समय वहां पर इट को एज अ सब्जेक्ट लगा देना है, लेकिन वहां पर इट का मतलब कुछ भी नहीं होता है. वो एज अ डमी सब्जेक्ट यूज हो रहा है. समझ गए? यस. चलो कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, देन इट्स गोना बी क्लियर टू हियर वी आर. तो मैंने बोला 7 बजे हैं, क्या बोलोगे? 7 बजे हैं. 1 o'clock. इट्स 7 o'clock. सिंपल. तो इट्स 7 o'clock, 7 बजे. कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर जाओगे. तो इट्स 7 o'clock. मैंने बोला दिन है. इट्स डे. ओके, तो दिन है, इट्स डे. अभी दिन है, इट्स डे नाउ. अभी रात है, It's night now. इट्स नाइट नाउ. अभी सुबह है, It's morning now. इट्स मॉर्निंग. तो why am I sneezing here unnecessarily? It's crazy. Okay, बाय द वे आगे मूव करते हैं. तो इट्स मॉर्निंग नाउ, अभी सुबह है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बोला भैया आज संडे है. It's Sunday. इट्स संडे टुडे. इट्स संडे टुडे. अब यहाँ पर ये मत बोल देना टुडे इज संडे. इज दैट क्लियर? क्योंकि जब भी टाइम की बात करोगे तो वहाँ पर इट एज अ सब्जेक्ट यूज होता है. तो अगर आपने बोल दिया टुडे इज संडे, हालांकि लोग बोल देते हैं, बट अल्टीमेटली यू हैव टू कीप इन माइंड दैट दिस संडे इज रॉन्ग. इज दैट क्लियर? Yes sir. Yes. ओके. सो ऐसे सिमिलरली इफ आई से आज मेरा बर्थडे है, क्या बोलोगे?
It's My my इट्स birthday today. माई बर्थडे टुडे। आप यहाँ पर कल मेरा बर्थडे था। It's my was इट वॉज my birthday today. इट वॉज माई Not, बर्थडे यस्टरडे, yesterday. ठीक है ना। इट Yesterday. वॉज माई बर्थडे यस्टरडे, कल मेरा Birthday, बर्थडे था। ऐसे बोलो आज छुट्टी है, it is holiday. इट्स It's holiday. हॉलीडे टुडे। तो इट्स हॉलीडे टुडे, आज छुट्टी है। सिमिलरली आप आगे मूव कर सकते हो, आज दिवाली है, It's Diwali. इट्स दिवाली Diwali टुडे। today. सो अल्टीमेटली सारे के सारे संडे से में आप टाइम की बात करो, और जब भी आप टाइम की बात करोगे वहाँ पर इट एज अ सब्जेक्ट यूज होगा, सिंपल सी बात है। मैंने बोला कि नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, रेनी सीजन है, रेनी सीजन है, क्या बोलोगे? It's rainy Rainy. season. इट्स RAINY, रेनी सीजन, कुछ इस तरीके से। एंड इफ आई से दैट जुलाई है, व्हाट वुड यू से? It's July. इट्स जुलाई। सो अल्टीमेटली यहाँ पर इट का मतलब कुछ भी नहीं होता। अगर आपको बोले कि जुलाई है, जुलाई का मंथ है, तो इट्स जुलाई है, तो इट्स द मंथ ऑफ जुलाई, इट्स द मंथ ऑफ जुलाई। सो अल्टीमेटली यहाँ पर आपने देख लिया, ऑफ का मतलब होता है काटे की। तो अगर आप बोलते हो कि जुलाई का महीना, तो आप बोलोगे द मंथ ऑफ जुलाई। इज दैट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, दैट्स गोना बी लाइक 7:30 बजे है। It's It's seven. इट्स 7:30, Past. या तो seven past. इट्स 7:30, या तो बोल दो इट्स 7:30। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब एग्जैक्टली समय तो पहले अगर कंफ्यूजन तो डायरेक्टली बना दो, कोई टेंशन नहीं है। और एडवांस तरीके से समय को कैसे बताते हो तो हम कल देखने वाले, कल की क्लास में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो इस तरीके से आपको आगे मूव करते रहना है। वेन एवर यू टॉक अबाउट टाइम, एट दैट टाइम इट इज यूज एज अ सब्जेक्ट एंड इट हैज नो मीनिंग एट दैट टाइम। इज दैट क्लियर? Yes, yes, sir. sir. तो यहीं से इस क्लास को हम दी एंड करेंगे। लेकिन उसके पहले जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, लाइक जितने भी आपने कॉन्सेप्ट देखे, उनसे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चंस राइट नाउ। सो टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट विच वी हैव लर्न टुडे, इसके साथ साथ फिर आपको वर्ब्स कुछ वर्ड्स मिलेंगे लर्न करने के लिए। तो अल्टीमेटली ये कॉन्सेप्ट देखा, क्लॉक टाइम से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं। नीचे जाओगे तो बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। इट्स 5 o'clock, इट्स नाइट, इट्स मिड डे, इट्स अप्रैल, इट्स जुलाई। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स है इट्स से रिलेटेड। तो इन सभी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना। इज दैट क्लियर? Yes, sir. सो दीज आर द थिंग्स, एग्जांपल्स की प्रैक्टिस आप कर लेना। आई एम नॉट गोना मेक यू प्रैक्टिस राइट हियर। एंड सिमिलरली आपने जो दिस दैट दिस दोस्त के बारे में देखा, तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए। दिस इज माय बुक, या तो दिस बुक इज माइन, दैट इज योर बुक, दैट बुक इज योर्स, दिस इज हिज पेन, दैट दिस पेन इज हिज। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। सो यू गाइज हैव टू जस्ट गो थ्रू ऑल दिस एग्जांपल्स। और जब एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करोगे, इन बिटवीन अगर कोई डिफिकल्ट सा रूल मिल जाए तो उसको कॉपी में लिख लेना, और या तो संडे समझ में ना तो बता देना, तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव लर्नड। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हो। थोड़ा आगे अगर हम बढ़े, कल मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली टाइम बताने कैसे वाले हो, और अल्टीमेटली लास्ट में आपको कुछ वर्ड्स को याद करना है। जस्ट अ मिनट। ओके, सो फार हमने कैपेबल ऑफ तक मूव कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। यूज टू, ध्यान देना इन सबके पहले टू भी लगेगा, तो यूज टू बोलो या तो इन द हैबिट ऑफ बोलो। इज दैट क्लियर? 5 ही दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। Yes. यूज टू या तो इन द हैबिट ऑफ, इसका मतलब होता है आदी होना, ठीक है ना? Yes. आदी होना या तो आदत में होना, सिंपल Sir, used to किया करता था, उसमें भी तो यूज करते बात। हैं। वो यूज टू मॉडल है, और यहाँ पर यूज टू के पहले टू भी आता है, ठीक है ना? टू बी प्लस यूज टू यहाँ पर Yes. आने वाला। जैसे ही मॉडल आएगा तो उस यूज टू के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखना, वो यूज टू अकेला आता है, आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था। लेकिन ये जो यूज टू है टू बी के साथ आएगा, आई एम यूज टू प्लेइंग। इज दैट क्लियर? Yes. कुछ इस तरीके से यहाँ पर यूज टू यूज होगा। बस यहाँ पर ध्यान देगा, यहाँ पर जो यूज टू यूज हो रहा है ना, वो अकेले नहीं आएगा, वो टू बी के साथ, विच मींस इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, किसी न किसी के साथ आएगा। समझ गए? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, दैट्स रियली ऑसम। बाय द वे, उसमें दोनों में अंतर क्या हो तो हम आगे चल के देखेंगे। हर एक चीज़, जितने भी आपके डाउट आ रहे हैं ना, सारे के सारे डाउट्स क्लियर होंगे आगे चल के। तो यूज टू तो इन द हैबिट ऑफ मतलब हो गया आदी होना। आगे बढ़ते हैं तो हमने वो देखा फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, शौकीन होना, शौकीन होना। दिस इज द सेकंड वर्ड। थर्ड वर्ड पे मूव करते हैं, दैट्स गोना बी लाइक टायर्ड ऑफ। और ध्यान देना, कोई भी वर्ब आ रही है तो उसकी थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, और आपको पता है थर्ड फॉर्म क्वालिटी बताती है। सुनो, Yes, sir. टायर्ड ऑफ मतलब हो गया थका होना, थका होना। नेक्स्ट वन मैंने बोला अफ्रेड ऑफ या तो स्केयर्ड ऑफ। स्केयर्ड ऑफ मतलब हो गया डरा हुआ, तो स्केयर्ड डरा ऑफ हुआ हूँ। या तो अफ्रेड ऑफ, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। तो स्केयर्ड ऑफ या तो अफ्रेड ऑफ, डरा होना। एंड 1 2 3 4 एक वर्ड और लिख लो, सिक ऑफ या तो फेड अप विद, ठीक है ना? Yes.
सिक ऑफ या तो फेड अप विद। ए प्लीज टर्न द माइक ऑफ यार। सिक ऑफ या तो फेड अप विद, इसका मतलब हो गया उबा होना, उबा होना। उसी तरीके से दो और वर्ड ले लो, बेटर बेटर रहेगा। एक है बेंट ऑन, बेंट ऑन का मतलब होता है तुला होना, और लास्ट आपका है बिजी। बिजी मतलब होता है व्यस्त, आपको पहले से ही पता है, ठीक है ना। यस सर। व्यस्त, व्यस्त होना। तो आई होप दिस शुड बी इजी फॉर नाउ फॉर यू गाइस। ये सारे वर्ड्स हैं जो आपको कल याद करके लाना है, एंड आई डोंट रियली थिंक इट शुड बी हार्ड इनफ। इज इट क्लियर? आसान है? यस सर। दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क। अगर कोई कंफ्यूजन है जाता होगा तो बता देंगे सर, थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर दीजिए। तो आई विल बी इरेजिंग सम ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम हियर, और अगर याद कर लोगे दैट इज रियली ऑसम। क्या लगता है? क्या लगता है दोस्त, कर लोगे? यस Yes सर। sir, I can do. If you ओह आई do कैन डू इट, दैट्स रियली ऑसम। Yes. अब बात करते हैं कि अगर पहली बात तो राइटिंग डेली आपको करना ही करना है, दैट इज अ मस्ट। अब इसके साथ हम ट्राई करेंगे अपना 31 आवर पूरा निकालने का। तो हमारे पास 6 मिनट्स रिमेनिंग है। तो जब भी टाइम पास करना हो और आपको अपने इंग्लिश लेवल को पता करें कि आपका इंग्लिश लेवल क्या है, तो एक काम करें, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, ऐसे ही सिर्फ हिंदी देखना और फिर ट्राई करना बनाने का, ठीक है जी? Sir, my data is over. ओके, जस्ट फॉर 6 मिनट्स कैन यू जस्ट सर्वाइव? विल दैट बी इनफ फॉर 6 मिनट्स? ओके, ही इज गॉन। I don't know, but ओके, जैसे ही आपका डेटा खत्म हो जाएगा वैसे हम क्लास को बंद कर देंगे, ठीक है जी? सर जैसे कट हो जाए तो समझ लीजिए बात खत्म हो गया। हाँ, तो समझ लेंगे। यहाँ पर लास्ट चीज़ ये भी देखते चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूँ 4:15 है तो वहाँ पर इट्स 4:15 ही बोलोगे, इट्स 4:15 ओ क्लॉक नहीं बोलोगे, ठीक है ना? Yes sir. ओ क्लॉक सिर्फ और सिर्फ घंटे के लिए यूज होता है। अगर मैं बोलूँ 6 बजे है तो आप बोलोगे इट्स 6 ओ क्लॉक, 7 बजे है इट्स 7 ओ क्लॉक, लेकिन 7:15 है तो इट्स 7:15 ही बोलोगे, 7:15 ओ क्लॉक नहीं बोलोगे। इज दैट क्लियर? Yes sir. हाँ, अभी तो आप हो। चलो कोई ना। अब जब भी आपको आपका लेवल पता कर, सिंपल संडे सुना, छुट्टी है मतलब इट्स हॉलीडे, ये एक छुट्टी का दिन है मतलब इट इज हॉलीडे टुडे, या छुट्टी है तो इट्स हॉलीडे, सिंपल है ना? सो अल्टीमेटली इट्स अ हॉलीडे, इट्स एन ऑफ डे, तो इट्स एन ऑफ, यहाँ पर छुट्टी के लिए इस तरीके से बोल सकते हो, समझ गए? आगे बढ़ते Yes, sir. संडे को आपको ट्रांसलेट करना। मैंने 2 महीने के बाद गर्मी होगी, क्या बोलोगे? 2 महीने के बाद गर्मी होगी। It will be summer hot. after 2 months, yes or no? यस Yes, सर। इट विल बी, अरे यस सर नहीं बोला, आंसर भी देना है। इट विल बी समर, दो गर्मी होगी 2 महीने बाद, आफ्टर 2 मंथ्स। Summer after 2 months. नेक्स्ट क्वेश्चन 5 बजे है, इट इज 5 o'clock। इट्स 5 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वह मोबाइल मेरा है, This mobile is mine. वह मोबाइल मेरा है, दैट मोबाइल इज माइन, क्या बोलोगे? Yes sir. दैट मोबाइल, वह मोबाइल मेरा है, इज माइन। कुछ इस तरीके से आपको डेली प्रैक्टिस करते रहना। ज़्यादा दिमाग ना काम करो, सिंपल बुक उठाओ और चालू हो जाओ। बोतलें हमारी हैं, Those bottles द बॉटल्स, are our. सिंपल बोतल लिखे तो द बॉटल्स आर और हमारी है। इज दैट क्लियर? The bottles are our. नेक्स्ट वन Yes, sir. ये फरदीन के हैं, ये फरदीन के हैं, क्या बोलोगे? ये मतलब एक से ज्यादा है तो दीज, एक से ज्यादा है और पास है, ये है ना, पास में है ना, तो दीज आर फरदीन, तो दीज आर फरदीन, ये फरदीन के हैं। उसी तरीके से आप आगे मूव कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपकी, क्या बोलोगे? Yours. योर्स। और मैं बोलूँ आपकी किताब तो आप बोलोगे योर बुक। उसी तरीके से आप आगे बढ़ते चलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाँ, ले लो संडे से ले लो। वह वहाँ है, He यही ही He इज is देयर, there. और यहाँ पर शॉर्ट कर दो ही इज देयर, ये तो ही इज ओवर देयर। इज दैट क्लियर? Yes. यस चलो इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, ये वह हमारी प्रिंसिपल है, She is our principal. शी इज आवर प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, यह अक्षय की किताब है, It's This is- इट्स अक्षय's बुक, यस और नो? Akshay's book. Yes. इट्स शॉर्ट फॉर्म हो गया तो इट्स अक्षय's बुक। उसी तरीके से आप आगे मूव करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह उसका वॉलेट है, कोई किसी लड़की का किसी लड़के का यह उसका वॉलेट है। This wallet is. नो, दिस इज हिज It's वॉलेट, क्या wallet. बोलोगे? दिस इज हिज It's wallet. His वॉलेट। ऐसा wallet. क्यों बोला मैंने? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट यह है, ठीक है ना? Yes. सब्जेक्ट यह है, इसीलिए यह उसका वॉलेट है, दिस इज हिज वॉलेट। उसी तरीके से आगे बढ़ोगे। यह उसका घर है, This is
That His house. house. अच्छा यहाँ पर मैंने ये उसका घर है, ये उसका घर है, दोनों में सेम ही बोल दिया, दैट इज बाय मिस्टेक बाय द वे। दिस इज हिज हाउस, दिस इज, अच्छा लड़की के लिए कोई ना दैट इज सेम। तो ये उसका घर है, दिस इज हिज हाउस है, तो दिस इज हर हाउस। वहाँ पर इट का भी यूज कर सकते हो। लेट्स गो एट नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लाते हैं। ये भैया मैंने बोला हम उनके पहले थे, ये तो हम उनके सामने थे, क्या बोलोगे? हम We were before वी वर बिफोर देम, वी them. वर बिफोर देम, हम उनके पहले या तो हम उनके सामने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, मतलब तुम उनके बीच में होगे, You are between them. तुम उनके बीच में होगे, इन फ्यूचर होगे तो यू विल बी, क्या बोलोगे? You यू विल between बी them. अमंग देम, एक से ज्यादा लोग हैं, यू विल बी अमंग देम। अमंग की जगह अमंग्स का भी यूज कर सकते हो, एडवांस में बता रहा हूँ। अमंग की जगह अमंग्स का यूज कर सकते हो, ठीक है ना? Yes. sir. ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, दोनों के दोनों से मैं जब प्रेपोजिशन एडवांस प्रेपोजिशन का चैप्टर आएगा वहाँ पर सारी चीज़ों को मैं कवर करूँगा। तुम उनके आसपास होगे, तुम उनके आसपास होगे, You will be nearby them. यू विल बी नियर बाय देम। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। तुम उनके, ये तो हो गया भैया भैया भैया, आगे बढ़ते हैं। वह हमारे पक्ष में था, He was a favor of ही वॉज us. इन फेवर ऑफ अस, इज us. इट? ये तो ही वॉज इन और फेवर, ये भी बोल सकते हो। Yes. sir. both of these are right. Let's go ahead. We have Yes, practiced. Okay, next question. हम बहुत सारा प्रैक्टिस यहाँ पर कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड मैंने बोला भैया देखो उसे कॉल करने का कोई फायदा नहीं है, It's उसे call करने का- उसे call It is करने- no use. It is no use to call him. इट इज नो यूज, नो यूज के बगल में हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लगाओगे, सो इट इज It नो is no यूज use कॉलिंग हिम, Call him. इट इज नो यूज कॉलिंग Him. तो इट इज नो यूज कॉलिंग हिम। अरे जब बोल रहा है भैया, इफ यू आर हियर टू स्पीक सो यू हैव टू स्पीक। इंग्लिश प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं है, It is no No, use. no use to. इट इज नो यूज प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, सिंपल टू मत लगाओ, इट इज नो यूज प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। मैंने बोला बहाने बनाने का कोई फायदा नहीं होगा, बहाने बनाने का कोई, It will be no use मेकिंग एक्सक्यूजेस, क्या बोलोगे? making Make- excuses. इट विल बी नो यूज मेकिंग एक्सक्यूजेस, बहाना बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारी मदद करने के लिए प्रयास करने का कोई फायदा नहीं होगा। सुनो, तुम्हारी मदद करने के लिए प्रयास करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्या बोलोगे? It is no use. इट विल not बी, be- इट विल बी it नो will यूज, not सिंपल, be- नॉट मत it लगाओ, will नो be लगाओ, no use. तो इट विल बी नो यूज, कोई फायदा नहीं होगा प्रयास करने का, ट्राइंग, तुम्हारी मदद करने के लिए, टू हेल्प यू। इज दैट क्लियर? Yes. कुछ इस तरीके से, कोई प्रयास करने का कोई फायदा नहीं होगा, इट विल बी नो यूज टाइम, तुम्हारी मदद करने के लिए, टू हेल्प यू। तो तुम्हारी मदद करने के लिए प्रयास करने का कोई फायदा नहीं होगा, इट विल बी नो यूज ट्राइंग टू हेल्प यू। एनी कंफ्यूजन? No, sir. ओके, तो कुछ इस तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चन को आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला उसके पास खर्च करने के लिए पैसे ही पैसे हैं, उसके पास he has nothing but money. ही हैज नथिंग बट मनी टू स्पेंड। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, तो ही sir. हैज नथिंग बट मनी टू स्पेंड, उसके पास खर्च करने के लिए पैसे ही पैसे। इस तरीके से मैंने बस तरीका बताया सर कि आपको प्रैक्टिस करना कैसे है, ठीक है ना? और इस तरीके से Yes. सेंटेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो, उन सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो। So this is the way. In this way, you have to just go through all the things. Still, if you guys face any difficulty, you can let me know. Otherwise, this is it in today's class. And now I'm gonna catch up tomorrow. Is that clear? Yes, sir. All right. So your data isn't over yet. That's great. Congratulations. Yes, sir. Thank you, sir. You're Good most night, welcome. Now sir. I'm gonna see you tomorrow. The book will be sent there in the WhatsApp group. You can get it. And for now, bye bye. Take care. See you. Bye, sir. Bye. Bye. Thank you, sir. You're welcome.